Hello and welcome to Now Showing and welcome to the world of cinema. I'm Atika Farooqi. Believe you me, films have the ability to elevate your mood and heal your soul. Don't undermine its importance in today's world. With the rise of stress in the world around you, it's increasingly important to calm yourself internally. Films can do that. I have a film recommendation, a film review and soulful conversations to achieve just that. Let's begin with the headlines. Laced with good performances, Ajeeb Dastan treads on unexplored territories of our society. Raju Rani talks about the need to bring stories from small towns to the big celluloid for a more cohesive cinematic experience. Dulquer Salmaan, already a star, talks about what he learned from his superstar father down south, Mammootty. And Bhangra King Daler Mehndi takes a trip down memory lane. Ajeeb Dastans, that releases this Friday on Netflix, is an anthology of 4 short stories. They talk about different problems in different cultures, different classes and milieus, and different human ways of getting to the tail of one's predicaments. They explore marriage, revenge, jealousy, social demarcations, lust, void in a marriage, and silent and the loud language of love, deprivation, and lots more. Directed by established names such as Masaan fame Neeraj Gaiwan, Kayos Irani, who's also Boman Irani's son, Shashank Khaitan, and Good News fame Raj Mehta. I saw mature storytelling and something different in all of them. The first film is a tale of loveless marriage, intertwined with the social demarcations and its repercussions. Jaideep Ahlawat does a good job of a moneyed criminal who must be in a loveless marriage even while he's openly antagonized for the same reason by a much younger wife. It's a decent plot with a catch in the end. Seldom does it go beyond the palpable mystique though. हम किसी और से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे. Another one, Khilona, starring Nusrat Bharucha, is a goose-pimply story of underdogs of society who are unabashedly vocal and aware of their right to dream. It's well performed and the result of crisis is shocking. दीदी मोहल्ले वालों ने कटिया हटवा दी कि न पढ़ पा रही है न सो पा रही है. Now, third, arguably the best is a layered narrative of caste and gender labyrinth, so well shouldered by Konkana and Aditi Rao Hedri. It's the characters that make the plot shine here. It's about the people who are rarest of the rare, not figuring in your average construct of society. दलित समाज को तो ये फिल्म खास तौर पर देखनी चाहिए. No one else after all can set boundaries for you at work and in love. तुम्हें अपनी सच को मान लेना होगा. Last in this anthology is directed by Kayos Irani. Don't need to mention though, but it's delicious knowledge that he's Boman Irani's son too. So he also brings with the movie an innocence in a bottled up life. Shefali Shah and Manav Kaul are so good in this, and the irony of the plot is so moving that I had tears in my eyes too. I don't have time to learn the sign language. Ajeeb Dastans is a very, very watchable 2 hours of content. I thought good cinema should do away with unnecessary intimate scenes that restrict its consumer base, because good content must also be served to all ages, isn't it? It's one of them. It builds on you with time. I suggest you do make time for it. Ajeeb Dastan hai ye. Allow me to also recommend to you a movie for this weekend. It is The Ballad of Buster Scruggs. Don't go by its complex name. The movie is very simple and beautiful. Directed by the famous and awarded Coen brothers. It's American Western black comedy anthology film written, directed and produced by the star Coen brothers. The actors that you see are best. We have like Liam Neeson, James Franco, and the 6 stories are a mix of folklore and the harsh reality of the Western American way of life. The film earned 3 nominations at the 91st Academy Awards, and believe you me, cinema is mostly about the visual. You could watch it even on mute. It's so spectacular. Watch it on the biggest screen that you have at home. Moving on, Raju Hirani, oh God, he's such a maestro. He's a director and an editor. He has made 5 Hindi films, we all know that. Munna Bhai MBBS, Lage Raho Munna Bhai, 3 Idiots, PK and Sanju, and all of which have been commercial and critical successes. लेकिन हर फिल्म 2 से 3 साल बाद आती है, बस यही प्रॉब्लम है. He was born in 1962 in Nagpur to a Sindhi family.
His father, Suresh Hirani, ran a typing institute in Nagpur. His parents wanted him to be a chartered accountant, लेकिन हमारी किस्मत जोर मार रही थी, so वो filmmaker बन गए. As I always say, spend your time wisely on good films and good people. So let's have a good chat with him. After all, he's one of the brightest minds that we have. साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था, दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है, लौटा रहा हूं मैं. एक डायरेक्टर का विजन दरअसल उसके पूरे जीवन के एहसासात का कुल जमा पूंजी होता है. मैंने बहुत अरसे बाद ऐसी हिंदी किसी को बोलते हुए सुनी है, हिंदी उर्दू साहिर जी की बात करते हुए. आप कौन से जमाने से आ रही हैं? आज के जमाने में सुनने को नहीं मिलती. आप कान तरस जाते हैं कोई ऐसी तो आज के साहिर को जमाने कोट में करे. और जी हम सबकी खुद की इस शहर में आके हिंदी इंग्लिश हो गई है. इंग्लिश हो गई है. तो अच्छा लगा सुन के ऐसी हिंदी. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आपने अपनी फिल्म में बार बार मजरू सुल्तानपुरी की बात की. आजकल कौन करता है बताइए? सही बात है. खबरें देखते हैं आप आजकल? नहीं, खबरें तो मैं आप क्योंकि कई लोग, many people are off television these days. I have been off television if you ask me for many years. मुझे लगता है कि जो खबर होती है मिल जाती है, जो आपको जाननी होती है वो कहीं ना कहीं से कोई पहुंचा देता है या आ जाती है. तो मैंने जेन्युइनली कई सालों से टीवी नहीं देखा. एक दिन कहीं किसी के घर में गया तो चल रहा था, तो आप मानेंगे नहीं, मुझे जेन्युइनली लगा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे जेन्युइनली लगा क्यों लड़ाई हो रही है. मैं देख चुका था, मैं भूल गया था कि लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है टेलीविजन पे, बिकॉज आई हैड नॉट सीन इट फॉर अ व्हाइल. तो बिल्कुल. तो मुझे लगता है जो न्यूज़ होती है वो पहुंच जाती है, जो नहीं पहुंच रही वो जरूरी नहीं है. I'm sure you must be getting a lot of respect, Raju sir, around the world, isn't it? Sanjay Dutt has gained immensely from the films that he's done with you. But so are you a hero in the masses. आपने छोटे शहरों की प्रॉब्लम्स दिखाई, आपने यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स दिखाई, आपने ये जो कम्युनलिज्म के चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं और उसकी वजह से जिनको नुकसान होता है उनकी प्रॉब्लम्स दिखाई. मुन्ना भाई में एक डायलॉग था, वो संजय दत्त स्वीपर को कहते हैं रुलाएगा क्या, वो स्वीपर कहते हैं रुलाएगा क्या. तो फिलहाल आपके डायलॉग से मैं वो डायलॉग बोलना चाहता हूँ. अरे पगली रुलाएगी क्या? आई ऑलवेज से कि वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. सो हम जब लिखने बैठते हैं, जैसे स्पेशली अभिजात और मैं जब लिखने बैठते हैं, तो हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करके एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं उसके बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ था. हम 3 महीने तक तो लिखते ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस ऐसा हुआ था. तो हम अपने एक्सपीरियंसेस में डिग करते हैं, अपने लाइफ के जो ट्रिगर्स उसमें से लेते हैं, उसमें से निकाल के हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. जरूरी नहीं कि जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें से कुछ निकलता है, उसमें से एक सीन बन जाता है. इनफैक्ट मैं अभिजात से ये कहता रहता हूँ कि ये पिटारा किसी दिन खत्म होने लगेगा. अब हमको सफर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और लोगों से मिलना चाहिए, सिर्फ कहानियां बातें करनी चाहिए इंटरेस्टिंग लोगों से, ताकि वो रिफिल होता रहे. किसी ने मुझसे कहा कि अरे आपकी हर फिल्म में एक पिताजी का एंगल होता है. ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है. मैंने सबकॉन्शियसली हो रहा है. तो मुझे, मैं सुन के मैं एक सेकंड के डरा. मैंने कहा यार ये मैं वहीं डिग कर रहा हूँ जहाँ मेरा अट्रैक्शन है, शायद वहीं डिग कर रहा हूँ. ऐसी आपके फादर के साथ जो एक रिलेशनशिप थी, आपके फादर अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन वो कहते थे मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, तुम डायरेक्टर बनना. आपने बहुत रिसर्च की, बहुत रिसर्च. दैट इज सच अ ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप विद अ फादर. वो हमेशा दिखती है. वो आई थिंक 3 इडियट में फरहान के फादर को जो मैंने देखा, कुछ वैसे ही इंसिडेंट हुआ था. और इन दोनों यही होता था कि सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला साइंस, हाँ साइंस, फिर और कॉमर्स. इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, नहीं बन पाए तो बीकॉम करो, उतने भी मार्क्स नहीं हो तो आर्ट्स करो, ये होता था. तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो बीकॉम ज्वाइन कर लिया. फिर किसी ने कहा आप क्या बीकॉम करके क्या करोगे, इससे तो कुछ नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाओ. तो वो मैंने करना शुरू किया, फाउंडेशन कोर्स. और मैं क्लास में जाता था, वो शाम को होती थी क्लासेस, कुछ समझ में नहीं आता था ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इधर करो. तो मैं बहुत बोर होने लगा कोर्स करके, और मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं. तो मैंने कहा एग्जाम का टाइम आने लगा, मैंने एग्जाम दूंगा, फेल हो जाऊंगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी. हाँ, तो मैंने कहा अभी डैड को बोल देना चाहिए हिम्मत करके. 7 दिन तक मैं सोचता रहा कैसे बोलूँ, किस वक्त बोलूँ, कब वो अच्छे मूड में होंगे. तो मुझे तो अभी भी वो जगह दिखाई देती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लिटरली मुझे आते, मैं ऐसे स्टेप्स पे खड़ा था, वो नीचे खड़े थे, और मैं नीचे जाके उनसे कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा. तो उन्होंने, अच्छा मैं डरा हुआ था कि आप वो डांट पड़ेगी. उन्होंने 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और कहा तो ठीक है ना, छोड़ो, तो नहीं होता तो अच्छा नहीं होता, कल से आके तुम मेरे साथ बैठो. टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, टाइपराइटर्स बेचते थे सब, तो आके मेरे साथ काम करो. और मुझे याद है, मैं उन दिनों आई थिंक वो संक्रांति का कुछ मौसम था या वक्त था, मैं गया छत पे, हमने जाके पतंग उड़ाई. इट वाज लिटरली बेटे ने साथ में नहीं, मैंने मेरे भाई के साथ पतंग उड़ाया. सेंस ऑफ रिलीफ था कि यार
नहीं करना है। Nice. क्या बात। फिर अगले दिन से मैं लग गया उनके साथ, क्या बात। टैबलेट बेचते थे, और उसके वजह से मुझे वक्त मिला। क्या? एक कॉलेज में एक ग्रुप मिला जिसका ड्रामा करना शुरू किया। शाम खाली होती थी तो शाम को जाके प्लेस करते थे। वहाँ से समझ में आया कि यार ये बेटर है। उन्होंने कहा कि अरे यार तू मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तू ये अच्छा करता है, जा फिल्म इंस्टीट्यूट जा, पढ़ के जा। सो या आई हैड अ Very I think beautiful relationship. a father who had an interesting vision. He was outspoken. He was righteous. और वो सब देखा तो वो कई फिल्मों में उनकी ये सारी बातें आई है। We're heading for a short break. On the other side of this break, we have two Ds who hold the stage and who hold the screen for you. That is Dulquer Salmaan and Daler Mehndi. Don't go away. Welcome back. You're watching Now Showing. I am Atika Faruqi. Friends, I am a big fan of regional cinema. ये माला के वो मोती हैं जो अक्सर खूबसूरत पेंडेंट के पीछे छुप जाते हैं। मराठी फिल्म लाइक श्वास एंड सैराट, तेलुगु फिल्म लाइक कांजीवरम, गुजराती फिल्म लाइक हेलारू, मलयालम फिल्म लाइक नेलाकुयल. If you broaden your horizon, you start enjoying really good cinema that is being made outside of Mumbai too. Another southern import to Hindi cinema has been Dulquer Salmaan, son of legendary actor Mammootty. His films like Karwan, OK Kanmani, Second Show, Mahanati, Solo and Charlie have already established him as a promising star. Here is a conversation with him that reveals another side to this talent. Hi Dulquer. Hi. And I must say आप बहुत correctly pronounce करें मेरे नाम। Dulquer. जी बस आप ही I think पहले interviewer, yeah, I think anyone that I've met outside of my family who says ka. Yeah, my father says it correctly. But हाँ, superb. जी, तो नुक्ता कितने लोग खा जाते हैं? सब लोग। I mean और उसका spelling भी थोड़ा अजीब है क्योंकि ये क आने के लिए हमें मेरे फादर ने QUER रखा मेरा स्पेलिंग। तो क्यू में ऑलरेडी एक क है, आई मीन क से पढ़ सकते हैं, पर उसके और कंफ्यूजन डालने के लिए एक यू भी है वहाँ पे। तो सब लोग ये दलक्वेर, दुल्केर, हाँ बहुत किल द नेम। और मैं जब यूएस में पढ़ रहा था वहाँ पे, तो हर लोगों को बहुत No, they were quite curious about it. उनको ये बहुत entertaining लगता था। And और मैं वहाँ पे फूड कोर्ट्स में काम करता था और मेरा एक बैज था दुलकर, और वो बैज ये लोग चुरा के पहनते थे, अमेरिकन्स। एक दिन मैं जब काम पे आया और लॉकर खुला, वहाँ पे मेरा बैज नहीं था। एंड मैं हर जगह ढूंढा और एक लड़का आ रहा है हंस के ये पहन के, and I'm like, can I have my badge back? He said, dude, you have the best name. This is I made so many friends क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे प्रोनाउंस करें, और आइस ब्रेकर है क्योंकि बहुत कॉन्वर्सेशन शुरू होती है इसमें। Yeah, hey, what does the name mean? Nice name, bro. True, right? yeah. ममूटी जी जो हैं, उन 3 नेशनल अवार्ड्स उनके पास हैं। जी। भारत सरकार उनको पद्मश्री दे चुकी है। जी। भाई बहुत आगे जाना है आपको। मेरी सहानुभूति आपके साथ। जब मैं इवन स्कूल में पढ़ता था, यही बोलते थे मेरे फादर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 100% मार्क्स लाना है तुम्हें, या तुम ऐसा स्कोर करना है, तुम क्लास में फर्स्ट आना है, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तू डिसाइड कर तो तुम्हें क्या करना है। अच्छा। पर मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। वो ऐसे बोलते थे? हाँ, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ क्योंकि मुझे 3 नेशनल अवार्ड मिला है, तो मैं कंट्री में बेस्ट था 3 बार। तू क्या करना है तू डिसाइड कर, पर मैं ऐसा हूँ। तो हमेशा वो एग्जाम्पल से लीड करते थे मुझे, और कुछ रिक्वायरमेंट कुछ नहीं बताते थे, तो हमेशा मुझे वो फ्रीडम दिया था। तो मेरे दिमाग में मुझे बस यही थॉट था कि मैं फेलियर ना बनूं। आई हैड टू सक्सीड नो मैटर व्हाट। मुझे जो फील्ड चूज करना था, व्हाटएवर आई डू, आई हैड टू डू इट वेल। आपकी पहली फिल्म 2012 में आई है, राइट? जी। The name of the film was Second Show. जी। Your second film, Ustad Hotel, that also released in the same year, you got Best Debut Award for that. Yeah. And you worked in Tamil industry and Malayalam industry. And Telugu industry. And Hindi industry. जी। मेरे इंडस्ट्री में देखें तो मैं इतना काम नहीं करता हूँ। मेरे फादर 6-7 फिल्म्स करते हैं हर साल। हर साल। और मैं
3 या 5, ये मेरा एवरेज नंबर है एवरी ईयर। मलयालम मेरी मदर टंग है और तमिल मेरी थर्ड लैंग्वेज थी, या मैं चेन्नई में बड़ा हुआ हूँ तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज था। जो भी लैंग्वेज का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है, अगर मैं किसी तरह से वो टैकल कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है मुझे। Bhangra King Daler Mehndi takes a trip down memory lane as he sits down for a chat with my colleague Vishal Chatkara. Daler Paji also talks about his new offering, a religious track dedicated to devotees of ongoing Navratri. Listen in. वाह वाह जी वाह वाह मेरे मैया दी वाह वाह, वाह वाह जी वाह वाह नवरात्रि दी वाह वाह। किसी ने फड़ ले चिमटा, किसी ने फड़ ले छेने, ए जोगी शाम सवेरे तेरे बूहे ते रहने। आपने ये आपका माता की भेंट है जो आपने अभी ड्रॉप की है यूट्यूब पे, जी। क्या आप कहना चाहेंगे ये आपका गिफ्ट है माता के भक्तों को इस नवरात्रि सीजन के लिए? मैं सही कहूँ तो वाकई गिफ्ट है, और ये ऐसा कि पहले तो मुझे माता ने गिफ्ट दिया कि मुझे माँ वैष्णो देवी पहला नवरात्रा मैंने, ये वहाँ की लाइव है जो मैंने यूट्यूब पे डाला है, 1 घंटा मैंने वहाँ परफॉर्म किया। वाह वाह पहली बार हुआ है कि वाह वाह जी वाह इस वर्ड को यूज किया, नए स्टाइल के साथ मैंने किया। चलिए बात करते हैं आपके पहले ब्रेक की। आपके क्या मानते हैं कि बोलो तारा रावरा वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर, सबसे बड़ा मोड़ था? मैंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के मुंह से, लाइक राज कपूर साहब का इंटरव्यू, मैंने एक पंजाबी में बहुत अच्छा इंटरव्यू उनका। राज कपूर साहब कहते कि माँ 7 बच्चों को जन्म तो देती है लेकिन कर्म नहीं देती। लेकिन मेरे चेंज जो मैंने अपनी आंखों से इस कहावत को चेंज होते देखा कि माँ ने मुझे जन्म भी दिया और कर्म भी दिया। मेरी माँ ने मुझे ये मुखड़ा सुनाया था, ओ गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी ते ना चढ़ दी छड़िया दे तू ते टप चढ़ दी बोलो तारा रा। ये मैंने सुना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं अपनी मम्मी को बीबी, हम लोग बीबी बोलते हैं, मैं बीबी ये क्या है बोलती, ये मैंने अपनी नानी से सुनी थी और ये बोली है बहुत पुरानी। मैं इसको गा सकता हूँ, क्यों नहीं गा सकता? तो वो एक टर्निंग पॉइंट बड़ा था कि माँ ने मुझे जन्म दिया और कर्म दिया, मुझे गिफ्ट लक तकदीर दी, एक गाना दिया जिसने पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम बना दिया। मैं बहुत शुक्रिया हूँ मैग्ना साउंड का, क्योंकि मिस्टर शशि गोपाल थे जिनको ये मालूम था कि इस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ है और इसको मैं तलाश कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। पर उस पर पैसा लगाना, आज तक भी कोई कंपनी पैसा नहीं लगाती। और वो ऐसे थे कि पैसा लगाया, जैसे पैसा फेंका पैसा वापस बहुत आया, बहुत कमाया उन्होंने। लेकिन सोनू निगम, बाबा सहगल, अनिशा चेन्नई सबकी लाइफ बना दी उस आदमी ने, मैग्ना साउंड ने। पर ये बात थी, मैं एक बार उनको गुस्से में, हरदम कई बार गुस्से में प्यार से बोलता, मैं क्या आप मेरी एल्बम से इतना पैसा कमा के आप पता सबके वो लगा दो। मैंने कहा घोड़े भी पैसा लगाया करो, गधों भी मत लगाया करो। वो गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी रहते ना चढ़ दी छड़िया दे टू ते टप चढ़ दी बोलो तारा रा। यू नो आप एक ट्रेंड सेटर हैं। पंजाबी गानों का जो एक ट्रेंड जो हिंदी फिल्मों में स्टार्ट हुआ वो आपने शुरू किया था। एक फिल्म थी अर्जुन पंडित, अर्जुन पंडित, मृत्यु दाता थी, वो फिल्म का अकल लड़ती है तो लड़ने दे। आपने दोनों दौर देखे हैं, कैसे देखते हैं बॉलीवुड को, तब का बॉलीवुड और आज का बॉलीवुड को? बहुत फर्क है। अब तो बॉलीवुड ना अब ट्रिक्स ज्यादा है, मेहनत कम है। पहले हम लोग अपने मेहनत के बल बूते पे आगे निकले। फिर हमारे साथ क्या होता था कि अब जो फिल्में मैंने काम किया, उस फिल्मों में ड्रेसेस भी मैंने खुद ही अपनी डिजाइन की है। और जो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला चैनल बी अवार्ड का, बोलो तारा, तो मुझे विनोद खन्ना साहब के हाथ से मिला था। मैं बहुत खुश था, मैं उनका बहुत फैन हूँ। तो मुझे एंकर ने बोला आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा था ये मेरी अभी शुरुआत है, अभी मैंने 99 स्टेप चढ़ने, ये कितनी दूर तक चलेगा। मैं कहा अभी तो ये बेबी है पंजाबी पॉप म्यूजिक, अभी वे स्क्रॉल करना सीखेगा, स्क्रॉल के बाद वो फिर बड़ा होगा, चलना सीखेगा, अभी तो बड़ा जवान होगा। अब जवान हो चुका है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो मैं चीज लेके आया वो इतनी बड़ी हो गई और बढ़ती जा रही है। मैं डर दी रब रब कर दी वे, मैं डर दी रब रब, मैं डर दी रब रब कर दी के लोग क्या छोए मोए छोए मोए छोए मोई। So,
We come to the end of this show. What are you doing apart from your regular work these days? मतलब अपने लिए लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप? क्या सीख रहे हैं? बताइए। भाई मैं तो खूब पोइट्री लिख रही हूँ, खूब पढ़ रही हूँ और अच्छी अच्छी मूवीज़ देख रही हूँ. सो हियर इज़ अ शॉर्ट वन. सुनिएगा. तू जाता भी है तो लौट आता है, पर्दों के पीछे से, परतों के नीचे से मुस्कुराता है. तू बंधन में है, मैं आज़ाद हूँ. तू मसरूफ़ है, मैं फुर्सत में. तू ज़िद में, मैं आरज़ू में. तुझको है मंजिल की तलब, मुझको तेरे जैसे की तलाश. आप भी कुछ लिखिए. राइट समथिंग. डोंट जस्ट बी लॉक्ड डाउन, बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव. Whatever you write, please share it with me. Tag me or tag CNN News 18 on social media. Let me see what you've got. So, we meet next week again. Till then, be good and please keep that mask up.